بھارت کے سمندر کے راستے مس ایڈونچر کی تیاری، افواج پاکستان بھارت کا غرور سمندر برد کرنے کو تیار۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ بھارت کی ممکنہ کارروائی سے متعلق علم ہے، افواج پاکستان مکمل تیار ہیں۔ بھارت جان لے اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ پاک بحریہ بھی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے ہر آن تیار۔ امیر البحر ایڈمرل نوید اشرف بھی دشمن کو دو ٹوک پیغام دے چکے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے کہ سرکریک سے جیوانی تک سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ طالبان رجیم کو واضح کر دیا کہ دہشت گردی ختم کریں، کیسے کرنی ہے یہ آپ کا کام ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا افغان رجیم کو دو ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے، ہمیں کوئی اخلاقیات نہ سکھائے، ہم کسی کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر منت سماجت نہیں کر رہے، اپنی مسلح افواج اور لوگ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے ضامن مسلح افواج ہیں، یہ ضمانت کابل کو نہیں دینی۔ سرحدی جھڑپوں میں 206 طالبان جنگجو اور 112 خارج مارے گئے۔ دہشت گردی جاری رہی تو سیز فائر ختم کر دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ گورنر راج سے متعلق اختیار حکومت کے پاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کے پی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں۔ آپریشنز کی بات ہو تو سیاسی قوتیں آواز اٹھانا شروع کر دیتی ہیں۔ دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ آئینی ترمیم حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 3 خارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ٹانگ آپریشن میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی۔ کامیاب آپریشن پر صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی حکومت نے 27ویں ترمیم کی تیاری پکڑ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں سے مشاورت۔ حکومت کا پیپلز پارٹی کے بعد ایم کیو ایم، مسلم لیگ ق، اے این پی اور جے یو آئی سے بھی رابطوں کا فیصلہ۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے اہم نکات اور ابتدائی خط و خال پر بات چیت ہوگی۔ این ایف سی ایوارڈ اور الیکشن کمیشن بھی مجوزہ آئینی ترمیم کا حصہ۔ بلاول بھٹو 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے لے آئے۔ مجوزہ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ہائی کورٹ کے جج کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کے آرٹیکل 200 میں تبدیلی شامل، این ایف سی شیئر میں پروٹیکشن ختم کرنا اور آرٹیکل 243 میں تبدیلی مسودے کا حصہ۔ آئینی ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ بھی شامل۔ وفاقی حکومت نے تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کا اختیار صوبوں سے واپس مانگ لیا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پارٹی پالیسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ Ladies and gentlemen, our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. The Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains. Pakistan's outreach to Central Asian republics represents another milestone in our diplomacy. Recent high-level visits have not only revitalized traditional friendship, but also restored global confidence in Pakistan's stability. Pakistan foreign policy is once again being recognized for its maturity, balance, and forward direction. پاکستان کی خارجہ پالیسی نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور امارات سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان اور چین سی پیک فیز 3 پر کام بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ Pakistan is blessed with more than 1,000 kilometers of coastline, an exclusive economic zone, and vast offshore potential in renewable energy, fisheries, and mineral resources. Our unique geography, where South Asia, Central Asia, and Middle East and Africa converge,
positions Pakistan as a natural maritime bridge between East and the West. पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान वस्ती जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। तवानाई, IT और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। तुर्की के शहर इस्तंबुल में गजा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इजलास में गजा मुआहदे और पायदार अमन के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया। इसहाक डार और दीगर अरब व इस्लामी वज़राए खारजा इजलास में शरीक हुए। वज़राए खारजा ने फ़लस्तीनियों के लिए फ़ौरी इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के इनखला और गजा की फ़ौरी तामीर नौ का मुतालबा किया। हमास की जानिब से गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज की सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। गजा में ताज़ा हमलों में 7 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मगरबी किनारे से 21 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। कहा गजा में कार्रवाइयों के लिए अमरीका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। हमारी सिमत दुरुस्त है और इसके समरात जो हैं वो आपके सामने हैं। इन्फ्लेशन नीचे आती है, पॉलिसी रेट नीचे आता है, उसके इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मोर दैन $4 बिलियन ऑफ प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को आगे लेकर जाना है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लाज़िम व मलज़ूम हैं वो if you are going to move towards sustainable growth. हमारी मुआशी समत दुरुस्त पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। हुकूमत आइंदा बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर ममलिकत IT शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं। FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। आपका जो टैक्स GDP रेशियो है वो रफली 1.49% एक साल में बढ़ा है। ये ना हमारे मुल्क में पहले कभी हुआ है, ना इस रीजन में कभी एक साल में हुआ है। हमें प्रोविंशियल रेवेन्यू से 0.85% ऑफ GDP आ रहा है और फ्रॉम FBR रेवेन्यू लोन विच आर 4 टैक्सेस एज यू नो, उससे हमें 10.33 आ रहा है। यही एक साल पहले जो नंबर था 10.33, ये 8.83 था। चेयरमैन FBR ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। राशिद लंगड़ियाल कहते हैं अगस्त और सितंबर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। रेवेन्यू शॉर्टफॉल के बावजूद FBR को मजीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। रेवेन्यू के लिए सूबों के ऊपर इतना दबाव नहीं जितना वफाक पर है। टैक्स इस्लाहात एक साल में मुकम्मल नहीं हो सकती। टैक्स वसूली को GDP की 18% पर लेकर जाना है। अक्टूबर में महंगाई वजारत ख़जाना के तखमीने से ज़्यादा रिकॉर्ड। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.83% इजाफा। अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 6.24% पर पहुंच गई। वजारत ख़जाना का अक्टूबर के लिए महंगाई का तखमीना 5 से 6% के दरमियान। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 441 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फ़ज़ा भी आलूदा। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। आलूदगी की शरह 142 पार्टिकुलेट मीटर रही। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान। 24 घंटे में 2800 शहरियों के चालान किए गए। सबसे ज़्यादा चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर हुए। सीट बेल्ट न पहनने पर 1607 चालान किए गए। तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट 743 चालान किए गए। गैर कानूनी पार्किंग पर भी 13 चालान हुए।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का परामद। चौधरी शुजात की बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मरहूम की रूह के असालो सवाब के लिए फातिहा खानी की। चौधरी शाफी हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इंतजामात को सराहा। शहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला की क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए मुआवनत करेंगे। NA 129 लाहौर में 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान। नून लीग से हाफिज नुमान मैदान में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर दी। NA 66 वज़ीराबाद और PP 87 मियांवाली में भी ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका हुकाम को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कराची में डाकुओं ने एक और जिंदगी छीन ली। बल्दिया टाउन नवाब कॉलोनी में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। इफ्तिखार अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अहले खाना का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। मैक्सिको में मेयर के कत्ल के बाद एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। मेयर कार्लोस को एक तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। वाक़े के बाद मुश्तइल मुजाहरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। मुजाहरीन का गवर्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। भारत में अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज। अनिल अंबानी ग्रुप से मुंसलिक $351 मिलियन के असास से मुंजमद। अनिल अंबानी की रिहायशी और कमर्शियल जायदादों पर लेन देन रोक दिया गया। निजी बैंक से $568 मिलियन के कर्ज की तहकीकात भी जारी। अनिल अंबानी पर कर्ज की रकम मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के लिए इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। इटली के शहर रोम में कदीम टावर तामीर नो के दौरान गिर गया। इमारत में काम करने वाले मुतअद्दिद कारकुन जख्मी हो गए। टावर गिरने से कई कारकुन मलबे तले भी दब गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए कारकुनों को मलबे से बाहर निकाला। UAE में परचम की तौहीन या गलत इस्तेमाल पर भारी जुर्मानों का ऐलान। परचम की तौहीन पर 25 साल कैद, 5 लाख दिरहम तक जुर्माना किया जा सकता है। अमाराती परचम का डिज़ाइन, केक, गुब्बारों, तिजारती अशिया पर लगाना तौहीन में शामिल। कौमी परचम का इश्तिहारात या कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल भी गैर कानूनी करार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा का मोहसिन नकवी का पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर दाखिला की पश्तून कौंसिल की रिवायती रक्स की तकरीब में शिरकत। मोहसिन नकवी ने पख्तून तलबा के साथ मिलकर रिवायती अदन रक्स में हिस्सा लिया। नया फॉर्मेट, नया इम्तहान और नया कप्तान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में आज मद्दे मुकाबिल होंगे। सीरीज के तीनों मैच फैसलाबाद में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान की मेज़बानी बहुत अच्छी है, फैसलाबाद में खेल कर इंजॉय करेंगे। शाहीन आफरीदी जीत के लिए पुरअज़्म। और मौसम ख़िज़ा में पीर चनासी के हसीन मनासिर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। दरख्तों के जर्द और सुर्खी माइल पत्तों ने वादी को रंगों की जन्नत नज़ीर बना दिया। पीर चनासी में सयाहों का रश फैमिलीज़ फितरत के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है।